Hello everyone, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତପନ ସାର୍ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତପନ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଏକାଡେମୀକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦରରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଥିବା କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଣିଛି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତୁମ ମନରେ ଏବେ ଛୁଆମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍ ବିଷୟଟା ନା କ'ଣ, କୋଉ ବିଷୟଟା ଆଜି ପଢ଼େଇବେ। ଚାଲ ଦେଖିବା କୋଉ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖିବା ଖୋଲଜା ସେମସିମ୍। ୟେସ୍, ଲେଖ ବିଷୟ ବାହାରିଲା। ବିଷୟର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବତେଇ ଦଉଛି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଉଟଲାଇନ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଉଟଲାଇନରେ ଦେଖ 17ଟି ପାର୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନକୁ 17ଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ମାନେ এই ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ 17ଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ଆଉ ତାକୁ 4ଟି ଲେକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ 17ଟା ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ସାରିବି। ପୁରା ବିଷୟକୁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ ପଢ଼େଇବି। ଯୋଉ ଇନ୍ ଡିଟେଲରେ ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼େଇବି ସେ ବିଷୟ ପୁରା ତୁମର ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତିନି ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। A to Z ସବୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ୱାନ୍ସ ସେ ବିଷୟ ତୁମେ ଆଜି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ମୋର ଲେକ୍ଚର ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ you don't need any tuition or something else. ତ anyhow ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଯୋଉ ସାରା ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତମ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଉଟଲାଇନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଉଟଲାଇନ ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଏଟା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟି ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟଟାକୁ ପଢୁଛୁ, ଏଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବା କ'ଣ ଏଥିରୁ ଶିଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ କୋଉ କୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ବା କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଏଠାରେ ପଢ଼ାଯିବ ବା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେ ସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଟାଇଟଲ ସ୍ଲାଇଡ୍, ତାପରେ ବିଷୟଟି କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବିଷୟଟି ତୁମ ମନରେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମାରୁଥିବ କୋଉ ବିଷୟଟା ସାର୍ ପଢ଼େଇବେ, ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ ଦ ପଏଟ୍, ପଏଟ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅବଭିୟସଲି ପଏଟ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ପଏମ୍, ଲାଇକ୍ ୱାର୍ମ ଅପ୍। ବିଷୟରେ ତ କିଛି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ଏଠି 4ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଟା ପଏମଟା ହିଁ ହେଇଥିବ। ତ ତାର 4ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି, ଠିକ ନାହିଁ। ସେଇ 4ଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି ତାକୁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୁଝିବା। ନେକ୍ସଟରେ ଗ୍ଲୋସରୀ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ମିନିଂସ, ଯେତିକି ଗ୍ଲୋସରୀ ଅଛି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ଲୋସରୀ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ତା ସହିତ ଯେତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି ତା ମିନିଂସ ବି ଆମେ ଶିଖିବା। ଫିଗର ଅଫ ସ୍ପିଚ ଦେଖିବା, ଫିଗର ଅଫ ସ୍ପିଚ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ପଏମରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଆମେ ସମେରି, ବିଷୟର ସମେରି ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏ ବିଷୟ କ'ଣ ବତଉଛି, ଆର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ କ'ଣ, କାହା ଉପରେ ଏ ବିଷୟ ସେଣ୍ଟର ହଉଛି। ନେକ୍ସଟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେhension କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ କମ୍ପ୍ରେhension କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଲିଟିଲ ବିଟ୍ ହାର୍ଡ ଫର ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ହାଉ ମଚ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ।
बट एई वीडियो देखि सारला परे तुम निश्चिंत भाबरे भाबिबो कि निश्चिंत भाबरे फील करि परिबो it is not that much difficult how much you think, because I'll give you some techniques, that techniques you can use and you can do better in comprehension questions. ओके जहाँ भी हो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जहाँ भी आलोचना करी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस परीक्षा रे आसिया भलिया क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पाइबो जदिओ किछि क्वेश्चंस आउ रहि जिवो से सब क्वेश्चंस मु सेकंड पर्याय रे जेबे भी ए विषय को आउ थर रिवीजन करैबी से समय रे तुमको से सब क्वेश्चंस को देकी तब डिस्कशन करिबे। नेक्स्ट रे तुमर डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज भी हमें डिस्कशन करिबा, बहुत सारा एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। नेक्स्ट रे आमे लेक्चर जो पढुचे एटा तार थॉट कोन रहिला, गुरुत्व कोन रहिला ता विषय टिके देखिबा। से सर थैंक यू कहि आमे एई जो विषयटा को सारिबा। जा भी हो एटा प्रथम लेक्चर, मु तुमको चारिटा लेक्चर देबी एई विषय रे। हो देखिबा नेक्स्ट रे कोन अछि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एग्जैक्टली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कोन अछि हमें देखिबा। देखो लर्निंग एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव्स जो अछि कोन ना पोएम रे हमें सेंट्रल आईडिया मु तुमको कहली पोएम रे सेंट्रल आईडिया मु तुमको देबी। पोएम का ऊपर बेस्ड होउची कोन आर सेंटर अछि से सब जानिबा, काहेकि एग्जाम रे ता ऊपर क्वेश्चंस आसी पारे, बहुत संभावना अछि। तापरे डिस्क्रिप्शन बतेइबी तुमको जो हमर पोएट रो अनुभूति कोन हैला देखि सारला परे गोटे ब्यूटीफुल साइट दृश्य देख सारला परे तांको मन रे कोन अनुभूति तयारी हैला, कोन भावना आसिला से सब को हमें डिस्क्राइब करिबा। एक्सप्लेन द पोएम स्टांजा बाय स्टांजा सब सिंपल लैंग्वेज रे हमें ताको एक्सप्लेन करिबा। प्रत्येक स्टांजा को मु सिंपल अति सिंपल लैंग्वेज रे तुमको एक्सप्लेन करके देबी। तापरे ता सहित इंपोर्टेंट वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जहाँ भी वोकाबुलरी अच्छी से सब जिनस को भी हमें कौन करिबा सिखिबा। आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। ए पोएम रे पोएम माने तो सेति निहाती फिगर ऑफ स्पीच थिबो। फिगर ऑफ स्पीच माने तुमे जानि थिबो अलंकार निश्चित भाव रे अछि, ताकू हमें कौन करिबा ना ताकू भी हमें आइडेंटिफाई करिबा। ता सहित ताकू मु कौन करिबी ना वर्णना करके तुमको देबी। तापरे अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर इन द पोएम, एही पोएम रे नेचर रो गुरुत्व केते ताकू भी हमें बुझिबा। ए पोएम रे नेचर रो गुरुत्व केते ताकू हमें बुझिबा। तापरे लर्निंग इंपोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर, लर्निंग लर्न करिबा इंपोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस जेउडा गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन ताकू हमें सिखिबा एवं तार जो आंसर्स अछि ताकू भी देखिबा, क्वेश्चन आंसर को सिखिबा। तापरे डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी किपरि हमें लेखियो, हाउ टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। लाइक before some time I told you how much you think like it is very difficult, but not like that. I will give you some technique to write the comprehension questions. Next discussion of MCQs, even आम MCQ discussion मध्य करिबा। तो जहाँ भी हो यही सब ऑब्जेक्टिव्स नहीं कि मु तुम आगरे ए वीडियो को प्रेजेंट करने को जाऊँगी। तो नेक्स्ट कौन अच्छी देखिबा। बस देखो छुआ माने ए विषय मु पढ़ेबा को डैफोडिल्स किए लिखछि विलियम वर्ड्सवर्थ लिखछन्ती केते देखि पारछो। प्रेजेंटेड बाय तपन सर इंग्लिश एकेडमी। तपन सर इंग्लिश एकेडमी जो यूट्यूब चैनल ता द्वारा एटा प्रेजेंट करा होउची डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ करो। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण समस्त छात्र छात्री मानक पई, से आर्ट्स हो कॉमर्स हो किबा साइंस हो, कहीं इंटरनल ले मिनिमम तो 6 मार्क आसीबो, मैक्सिमम 8 मार्क भी आसी पारे। तो सेही दृष्टिकोण रु ए बहु गुरुत्वपूर्ण, तो आकु जानिबा बुझिबा निहाती दरकार। तो ये होची नेक्स्ट टाइम जिबा कोन अछि देखिबा। देखो
अच्छी इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट पोएट कर आम इंट्रोडक्शन देखा पोएट कर जो इंट्रोडक्शन अच्छी एटा पोएट किए अच्छा विलियम वर्ड्सवर्थ जन्म तांकर केबे 1770 रे मृत्यु 1850 रे से जड़े इज वन ऑफ द मेजर पोएट्स ऑफ हिज टाइम तांको समय रे जेतिकी गुरुत्वपूर्ण बा मेजर पोएट सब थिले रिनाउंड पोएट सब थिले तांको भितरु ये अन्यतम ये भी जड़े थिले ही वाज ऑनर्ड एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट तांको सम्मानित करा होइथिला कोउथिरे ना इंग्लैंड रो पोएट लॉरेट भाबरे इंग्लैंड रो पोएट लॉरेट भाबरे तांको सम्मानित कराइतला ऑनर माने सम्मानित करिवा देखो इंग्लैंड रो पोएट लॉरेट ई जो इंग्लैंड रो पोएट लॉरेट कहउची व्हाट इज द मीनिंग व्हाट अबाउट पोएट लॉरेट कोन ना पोएट लॉरेट होची गोटे उपाधि जोटा कि इंग्लैंड रे दिया जाए पोएट मानकू जने रिनाउंड जने विशिष्ट पोएट को पोएट लॉरेट उपाधि दिया जाए तो पोएट लॉरेट उपाधि जो माने पांती तांको किए दियंती ना राजा से समय जी राजा शासन करथांती बा जो रानी थांती से ही पोएट लॉरेट उपाधि जो विशिष्ट बा रिनाउंड पोएट थांती तांको ही दियंती आउ से पोएट करो रिस्पांसिबिलिटी कौन रहे ना से रॉयल इवेंट्स पाई पोएम कंपोज करिवे माने राजकीय उत्सव पाई पोएम्स सबु कंपोज करिवे जो पोएम को जो सबु राजकीय उत्सव हम से पाठ करा जिवो ए थिला पोएट लॉरेट कर ताले पोएट लॉरेट जो थिले विलियम वर्ड्सवर्थ केते रु केते वर्ष थिले ना 1843 रे से हेले पोएट लॉरेट 1850 रे तांको डेथ हला से पर्यंत मृत्यु पर्यंत से पोएट लॉरेट थिले ही डिफाइंड पोएट्री देखो सी गुटे डेफिनेशन देइथिले पोएट्री एटा भारी गुरुत्वपूर्ण जिंस सी गुटे डिफाइंड करथिले पोएट्री को पोएट्री रो जो परिभाषा थिला रोमांटिक ये हुची रोमांटिक जुगर पोएट ना तो रोमांटिक जुग पूर्वरु पोएम रो जो परिभाषा थिला ताको पूरा संपूर्ण डिफरेंट वे रे से प्रेजेंट करिथिले तो तुम देखि पड़थि एपट लेखा आइछि ए ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट ही लव्ड नेचर एंड बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग लेखा आइछि मु ए जो पोएट्री रो डेफिनेशन तुम कहवा पूर्व जस्ट टिके मु कहि दउछि देखो ए ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट से जने जे तांग घर इंग्लैंड रे थिला से इंग्लिश रोमांटिक पोएट आ लेखु भी थिले इंग्लिश रे सी भल पाउथिले नेचर प्रकृति को बहुत भल पाउथिले रोमांटिसिज्म जुगरे थिले रोमांटिक एज रे थिले से समय रे सबु कवि प्रकृति को भल पाउथिले प्रकृति ऊपर लेखुथिले से भी भल पाउथिले नेचर को एंड बिलीव करथिले सिंपल लिविंग को से विश्वास करथुले साधारण जीवन यापन करथुले एवं हाई थिंकिंग साधारण जीवन यापन करथुले मात्र उच्च कोटिर चिंताधारा तम पाखरे थिला सेइथि पई हुए तो से तांकर लेखा आ से तांकर लेखा आज आम बही रे अच्छी जहाँ को पढ़ी आम परीक्षार उत्तीर्ण हो चाकरी खंडे खंडे पाउछु जहाँ भी हो से लगी ये माने होचन तो हमर इंस्पिरेशन चलो आमे देखिबा तांकर डेफिनेशन कोन देथिले कि डिफाइंड पोएट्री को जो पोएट्री को केमती डिफाइन करछंदी ताकू देखिबा देखो पोएट्री को से कहिथिले स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions recollected in tranquility এই जो देले पोएट्री रो डेफिनेशन एटा को हमें बुझीबा केमिति बुझीबा ना हमें शेषरु हमें प्रथम आड़ को जीबा माने आरंभ आड़ को जीबा देखो ट्रैंक्विलिटी माने कोन शांत परिस्थिति रे रिकलेक्टेड माने कोन मने पडुथिबा इमोशंस शांत परिस्थिति रे मने पडुथिबा इमोशंस कहिले से सुखदायक होइतै पारे बा दुखदायक होइतै पारे तुमे जानिथिबो जेतले शांत तुमे हे जाउथबो जेतले शांत परिस्थिति रे एकाकी हे जाउथबो शांत मन रे थिबो सेते बेले देखिबो तुमरे मन पड़े तुमरो जो हैप्पी मोमेंट आउ सैड मोमेंट से सब जिंस
सेउठू तैयारी हुए, अराइज फ्रॉम सेउठू तैयारी हुए कौन सेउठू से जो आवेग से जो मने पड़ुथुवा आवेग रु कौन हुए ना तैयारी हुए, अराइज फ्रॉम माने तैयारी होबा कौन ना पावरफुल फीलिंग्स तैयारी हुए। पावरफुल फीलिंग्स माने छ माने कौन ना अति शक्तिशाली भावना सब तैयारी हुए। आ से शक्तिशाली भावनार कौन हुए ना ओवरफ्लो हुए। कौन हुए ओवरफ्लो, प्रभाव हुए स्पॉन्टानियस प्रभाव हुए। स्पॉन्टानियस माने नेचुरली बा सडनली बा सत्य प्रत भाव रे नेचुरली कौन सी एडिट वाला जिनस नहीं, कौन सी माने आर्टिफिशियल जिनस नहीं, नेचुरली सेउडा कौन हबो ओवरफ्लो हबाकू लागिबो, प्रभाव हबाकू लागिबो कौन ना सी पावरफुल फीलिंग सडनली ओवरफ्लो हबाकू लागिबो। कोठू से पावरफुल फीलिंग्स तैयारी हबो ना इमोशंस रु तैयारी हबो। से इमोशंस केते बेले मने पड़िबो ना ट्रैंक्विलिटी माने कोन छ माने शांत अवस्था रे बसतिबा समय रे। तले पोएट कोन कहबाकू जाउचंती, कहबाकू चाहउचंती ना पोएम होची सेईटा कोउटा ना ट्रैंक्विलिटी समय रे शांत अवस्था रे शांत परिस्थिति रे मने पड़ुथुवा आवेग, मने जो आवेग मने पड़े से सबुरु गोटे पावरफुल फीलिंग्स रे तैयारी हुए। सेटार ओवरफ्लो अत्यधिक पावरफुल फीलिंग्स हे गला परे ओवरफ्लो जो हबो स्पॉन्टानियसली हबो, नेचुरली हबो, ताकू ही कहा जाए पोएट्री। जो थरे की कोनसी आर्टिफिशियल थिंग नथिबो, नेचुरली सब जिंस क्रिएट हबो, ताकू ही नै की जने पोएट पोएम लिखिबो। ओके तापर से कौन कहूची ही इज ए पोएट ऑफ नेचर। मु एबे कहितली से नेचर ऊपर लेखंती, तांको से लेकी पोएट ऑफ नेचर कहा जाय बा नेचर पोएट बोली कहा जाय। से को जुगर थिले ना रोमांटिक एज रे थिले, रोमांटिसिज्म जहा को कहा जाय, एंड यूज कॉमन वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। एवं से व्यवहार करथिले साधारण वर्ड्स सब व्यवहार करथिले टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, तांकर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करियाली। को फीलिंग्स ना पावरफुल फीलिंग्स को कोउथिरे छुआ माने ना पोएम आकार रे एक्सप्रेस करिबा लागि से अति साधारण वर्ड्स सब व्यवहार करथिले, ना कि कोनोसे बम्बास्टिक वर्ड व्यवहार करिकि रीडर मान को कंफ्यूज करिबा। यहा तांकर जो रूल्स थिला पोएम लेखिबारो सेथिरे एहा नथिला। से समस्त को कहते इवन से लगी से डिबेट भी करथिले कि जहाँ भी आम लिखा अति कॉमन और सिंपल वर्ड्स रे लिखिबा, आउ ए सब नेचुरली आम लिखिबा दरकार। जहाँ भी हो बाकी रहिला छुआ माने रोमांटिक एज जो थिला से समय रे सबु नेचर ऊपर सबु पोएट माने लिखुथिले। नेचर कहिले नेचर ऊपर लिखुथिले, फूल फल पर्वत झरणा ए सब ऊपर चढ़ई ए सब ऊपर लिखुथिले। तो आम पोएट भी सेमिति लेखुथिले। देखिबा एबे आमे जिबा नेक्स्ट रे कोन अछि। देखो नेक्स्ट अछि बैकग्राउंड ऑफ द पोएम और वार्म अप। देखो तुम वार्म अप बोली गोटे थिबो तुम बहि रे देखियो, वार्म अप बा बैकग्राउंड ऑफ द पोएम रो बैकग्राउंड रे कोन अछि सेटा हमें देखिबा ना कि। देखो this poem incorporates the ideas and aspects essential to romantic poetry। देखो छुआ माने एही जो पोएम पढ़िबा, को पोएम ना डैफोडिल पोएम जो पढ़िबा इनकॉर्पोरेट्स करे। इनकॉर्पोरेट्स माने गैदर कराए बा अंतर्भुक्त कराए द आइडियाज एवं एस्पेक्ट्स माने क्वालिटीज बा फीचर्स बा कैरेक्टरिस्टिक्स। एस्पेक्ट माने क्वालिटी, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ भी तुम्हें कहि परिबो, जो गुडा की एसेंशियल गुरुत्वपूर्ण कहा प्रति ना रोमांटिक पोएट्री प्रति। रोमांटिक पोएट्री प्रति को गुडा गुरुत्वपूर्ण छुआ माने जो गुडा गुरुत्वपूर्ण से सबु जिनिस से सबु फीचर्स एही पोएम रे अछि बोली कुहा होची। द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स इज एविडेंटली द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम। देखो एही पोएम रो मुख्य विषय वस्तु कोन ना मुख्य होची द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स। देखो एटी गुटे डैफोडिल रो गुटे फील्ड इटे अछि, सेटा होची मुख्य। एटी एविडेंटली माने कोन छुआ माने क्लियरली सब्जेक्ट, एही पोएम रो सब्जेक्ट बोली कुहा होची। मेकिंग नेचर द मोस्ट अपरेंट फीचर थ्रू आउट। कोन होची थ्रू आउट माने तुम मन रे बेस थ्रू आउट माने कोन ना थ्रू आउट माने होची फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आरंभ रु शेष पर्यंत
एईटा दृश्यमान होउथिबा गोटे फीचर अपरेंट माने देखा जाउथिबा दृश्यमान हेउथिबा फीचर मान तो जानलो क्वालिटी बा कैरेक्टरिस्टिक्स बोली जानिलो जोटा कि नेचर को देखौछि मोस्ट अपरेंट फीचर थ्रू आउट आरंभରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରୁଛି ସେଇ ଆରंभରୁ जो पोएम रो आरंभରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ जो ଆମର ଅଛି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଡାଫୋଡିଲ ର ଫିଲ୍ଡ ଟା କଣ ନା ଦେଖଉଛି କଣ କଣ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ବତଉଛି ନା ନେଚର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଆମେ ନେଚର को ଆମେ ଏହି पोएम माध्यमरे ଆମେ କଣ କରୁଛୁ बहु पोएम माध्यमरे बुझिबाकू जानिबाकू चेष्टा करूछु आउ एठी पूरा नेचर विषय ही कुहाइछि एठी नेचर विषय कुहाइछि कहा माध्यमरे छुआ माने ना फील्ड ऑफ डैफोडिल्स माध्यमरे कोठु ना पोएम रो आरंभରୁ शेष पर्यंत सबु पूरा ये रे सी फील्ड ऑफ डैफोडिल ता रहुछि आउ सेथिरे कोन ता माध्यमरे नेचर को हमें कोन करछु ना सेंटर करछु वर्ड्सवर्थ adds a range of natural images देखो वर्ड्सवर्थ एथिरे ऐड करचंदी किछि नेचुरल इमेजेस ऐड करचंदी सच एज कोन छ माने ना लेक्स अछि ट्रीज अछि स्टार्स अछि एंड इवन क्लाउड्स इन दिस पोएम एही पोएम रे एही सब क्लाउड्स माने तमे जानथियो बादल एही सब पोएम रे एही सब गुडा को एउडा नेचुरल इमेज एउडा सब नेचुरल इमेज को कोन करचंदी ऐड करचंदी थ्रू नेचर a tranquil mood is instantly created from the very first line देखो आर जो ई पोएम रो जो प्रथम लाइन टा कोन आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड एटा होची प्रथम लाइन कोन अछि आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड एटा पोएम रो प्रथम लाइन इवन डैफोडिल रो आउ गुटे ना होची एटा आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड माने मु एमलेसली घुरी बुलुथली एकुटिया एमलेसली घुरी बुलुथली को भलिया ना बादल भलिया गोटे बादल भलिया मु एमलेसली एकुटिया घुरी बुलुथली बोली कुहाउची लाइन रो अर्थ तो एई जो लाइन रु कोन इंस्टेंटली तत्क्षणात तयारी होची कोन को प्रकार होची चिंताधारा ना को प्रकार मिजाज देखा होची ना ट्रैंक्विल माने कोन गोटे शांत मिजाज ते तयारी होची थ्रू नेचर कहा मध्य दे नेचर मध्य दे गोटे शांत मिजाज बा शांत परिवेश गोटे संगे संगे तयारी होची इंस्टेंटली तत्क्षणात तयारी होची जेते बेले आमे आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड पोएम रो प्रथम लाइन पढी दोछु आमे सेउटु जानि परछु ना बते परिवेश बहुत शांत अछि आउ सेटा को कोन ना नेचर माध्यम रे बताउची तापरे कोन अछि छ माने द एटमॉस्फियर ऑफ द पोएम इज वेरी पीसफुल देखो से एटमॉस्फियर टा परिवेश टा बहुत पे जो पोएम रो परिवेश टा कोन अछि सेटिंग टा भारी पीसफुल अछि एंड द यूज ऑफ नेचर एवं आमे जो नेचर रो व्यवहार टा क्रिएट्स करछु गोटे जॉयफुल सेटिंग क्रिएट्स करछु गोटे आनंददायक सेटिंग गोटे परिस्थिति आनंददायक परिस्थिति बा आनंददायक परिवेश टे सृष्टि करछि कारण एटमॉस्फियर ए पोएम रो एटमॉस्फियर टा भारी पीसफुल हैला कि नै तापरे not until the poet later muses about what he saw does he fully appreciate the cheerful sight of the dancing daffodils से एठी कोई लाइन टा छ माने बुझिबो कोन कहूची not only the poet later muses ई जो अछि the poet later muses देखो म्यूज माने कोन गभीर भाव रे चिंता करिबा लेटर माने परवर्ती समय रे पोएट कोन करंती परवर्ती समय रे गभीर भाव रे चिंता करंती कहा विषय रे अबाउट माने विषय रे what he saw जहाँ से देखिले जहाँ से देखुथिले डज ही फुली अप्रिशिएट द चीयरफुल साइट ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स कौन से देखथिले आमे जानिचु डांसिंग डैफोडिल्स रो दृश्य मनोहर दृश्य मनमुग्धकारी दृश्य को से देखथिले जोटा कि अत्यंत आनंददायक थिला से जिंस को से देखिथिले परवर्ती समय रे जे पर्यंत ताकू गभीर भाव रे चिंता न करंती ताकू से ही फुली अप्रिशिएट से पर्यंत ताकू पूर्ण मात्रा रे बा कंप्लीटली कोन करंतिनी प्रशंसा करंती नाही बा उपभोग करंती नाही बोली कोहा होची तले कोन हुए ना सपोज पोएट हमर देखि देले कोन देखि देले ना जो चीयरफुल साइट ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स सेते बेले तो देखि देले देखि साला परे घरे जेते बेले से ट्रैंक्विल माने शांत पीसफुल परिवेश रे एकुटिया होई गले ताकू कोन कले ना गभीर भाव रे चिंता कले माने मने पड़ला रिकलेक्टेड हला पढितिली तारो डेफिनेशन हमें पढितिले रिकलेक्टेड कोठी हुए देखो मु आउ थरे तुमको देखि दूची रिकलेक्टेड हुए इन ट्रैंक्विलिटी कोथरे छ माने ना ट्रैंक्विलिटी
ଦେଖ ଦେଖୁଛ रिकलेक्टेड मने पड़े ट्रैंक्विलिटी कौन इमोशंस माने ये जो डिलाइटेड सीन देखले डिलाइटेड साइड देखले देखो दीची डिलाइटेड साइड दीची देखो कौन दीची छुआ माने देखो चियरफुल साइड माने तो आनंददायक दृश्य कहार डांसिंग डैफोडिल्स ताले एटा एटा एटी कोन ताले आनंद ई जो आवेगटा कोन इथरु तांको मिलुची ना खुशी मिलुची एटा से जतबेले एकुटिया ही जंती हुंती धर ट्रैंक्विलिटी रे तांको एडा मने पड़ला परे सेटु गुटे कोन हला पावरफुल फीलिंग्स तयारी हला कोन हे गला पावरफुल फीलिंग्स अति शक्तिशाली अनुभव तयारी हे गला सेटा अधिक मात्रा रे प्रभाव द्वारा हठात की जो प्रभाव हैला बा सत्य भाव रे प्रभाव जगु से आज यही पोएम टा लिखि पारले कोटा लिखि पारले छुआ माने ना डैफोडिल्स पोएम टा को लिखि पारले तो सांगे सांगे से देखिदेले डैफोडिल्स नृत्य करथुवार सांगे सांगे तो लिखि देबेनी नहीं पुणी जाइकी बसिबे बसिकी ता विषय भाबिबे तांको मजा लागिला हां ऑब्वियसली बहुत किसी सुंदर जिनस थिला से सब को से गभीर भाव चिंता कर सारा पर से कहूँ ही फुली अप्रिशिएट तापर जाकि से अप्रिशिएट करती बा ताकू प्रशंसा करती बा ताकू कौन कविता माध्यम रे कविता माध्यम रे ताकू समस्त पाखे पहुंचाते बोली से कहूची तापर देखो स्टडी द पोएम एंड नॉट हाउ वर्ड्सवर्थ ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड से कहूची कोन आस स्टडी करिबा एही पोएम टा को हमें आस पढिबा एवं नोट करिबा हाउ वर्ड्सवर्थ किपरि वर्ड्सवर्थ ग्लोरीफाई करचुंदी ग्लोरीफाइज माने बुझी पारछो माने ग्लोरीफाई माने प्रशंसा करूचंदी बहु मात्रा रे प्रशंसा करूचंदी द ब्यूटी ऑफ नेचर काहाकू द ब्यूटी ऑफ नेचर जो नेचर प्रकृतिर सुंदरता को से किपरि ग्लोरीफाई करचंती आसो ताको नोट करिबा बोली से कहूची पढिबा एवं नोट करिबा एंड द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड ताले एटी दीटा जिंस को से ग्लोरीफाई करचंती कोन द ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृतिर सुंदरता को से ग्लोरीफाई करचंती माने प्रशंसा करचंती एवं द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड माने लॉनलीनेस माने लॉनलीनेस ब्लिस माने परम आनंद देखो लॉनलीनेस रे जो परम आनंद ताकू मध्य से कौन करचंती ना प्रशंसा भूरी भूरी प्रशंसा करचंती आउ जो केते सुंदर से सब जिंस एठी बतैचंती एकुटिया लॉनलीनेस रो जो एडवांटेजेस अछि बा जो परम आनंद मिलिछि से सब विषय रे सेठारे ए पोएम माध्यम रे बतैचंती बोली कुहा होछि तो देखिबा केमिति से हो जे प्रशंसा करचंती बा केमिति ग्लोरीफाई करचंती ए सब जिंस तो नेक्स्ट जो अछि टेक्स्ट रे हमें पढिबा स्टैंजा माध्यम रे पढिबा तमे देखि पारथु सेटिंग ऑफ द पोएम को रो सेटिंग परिवेश केमती थिला देखि पारछो द पोएम इज सेट इन द ब्यूटीफुल लेक डिस्ट्रिक्ट तमे जानिथिबो ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट अछि एक्चुअली हमर विलियम वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करंती इंग्लैंड रो गुटे डिस्ट्रिक्ट अछि गुटे जिल्ला अछि लेक डिस्ट्रिक्ट जोटी बहुत सारा लेक्स अछि तो सेही डिस्ट्रिक्ट को से बिलोंग करंती आउ से डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करंती से दिन सेही भलिया से लेक कड़ देई से जाउ थांती आ सेठी तांगु से डैफोडिल्स देखंती आ सेटू से तांको मन रे परवर्ती समय रे जतेबेले से जिंस आसीची जतेबेले घरे एकुटिया बसचंती से सब जिंस तांको मन गभीर भाव रे चिंता करचंती तापरे नेचुरली सेटाको पोएम माध्यम रे से कोन परिप्रकाश करचंती तापरे देखो इंग्लैंड ए प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड पीस देखो से जो लेक डिस्ट्रिक्ट टा इंग्लैंड रे अछि एटा पूरा नेचुरल ब्यूटी पूरा भरी के अछि आउ कोन अछि छमने पीस पूरा शांति अछि जदी केही केबे इंग्लैंड जाओ ताले निश्चिंत भाव रे लेक डिस्ट्रिक्ट जीवो लेक डिस्ट्रिक्ट सब जिंस बुली की आसीबो जा भी होछ माने आई थिंक होची बैकग्राउंड ऑफ द पोएम जो वार्म अप टा हमर सरी गला छ माने तो एटा होची हमर फर्स्ट लेक्चर थिला एई लेक्चर पर जो सेकंड लेक्चर मु देबी तुमको सेथिरे तुमको पूरा जति के टेक्स्ट अछि छ माने जति के स्टैंजा अछि से सब गोटे गोटे करी के हमें एक्सप्लेन करिबा तो आजि पई छ माने एति की पुनी देखाबो नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू तो वीडियो को बहु मात्रा रे देखो देखिबा सहित आकु वीडियो को शेयर करो लाइक करो जहाँ डाउट आसीबो कमेंट बॉक्स रे दियो आ ता सहित बहु मात्रा रे सब्सक्राइब करो धन्यवाद थैंक यू सी यू नेक्स्ट क्लास थैंक यू